قلعے کی جو ساری خصوصیات ہوتی ہیں، جو فن تعمیر اور ریکوائرمنٹ ہے، وہ اس میں کی گئی ہیں۔ مین انٹرسٹ اس کا یہ مشرقی طرف ہے، جس کے سائڈوں پہ 2 بڑے باسشن ہیں یا جن کو برج کہتے ہیں۔ اسی طرح چاروں کونوں پہ اس کے جو ہے نا 4 بیکشن بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں تقریباً 97 کے قریب سیل ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ جی ٹی روڈ پہ جو مسافر یہاں سے گزرتے تھے وہ یہاں پہ اسٹے کرتے تھے، رکتے تھے اور رات کو قیام کرتے تھے۔ یہ قلعہ کچھ عرصے سے ان اٹینڈڈ رہا۔ 2 سال پہلے تقریباً ہم نے پلان بنایا ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی اینڈ میوزیمز نے کہ اس کی پریزرویشن اور کنزرویشن ضروری ہے، کیونکہ اس کی حالت کافی خستہ حال ہو چکی تھی۔ تو گورنمنٹ نے اس کو فنڈز پرووائڈ ہمیں کیے ہیں، جس کا ہم نے 2018 سے کام شروع کیا ہوا ہے۔ اور جو کام ہم نے سٹارٹ لیا ہے وہ یہ تھا کہ اس کا یہ جو فساد ہے، جو سامنے فرنٹ ہے، اس کا بیسشن جو ہے، یہ اس کی لک ہے، بہت خوبصورتی ہے، تو اس کو ہم نے کہا کہ یہ اپلفٹ کیا جائے۔ تو فرسٹ فیز میں ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کا ہم نے فرنٹ جو ہے نا وہ بیسشن جو ہے نا ریسٹور کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے اس کے اوپر ہماری جو یہ فورٹیفیکیشن وال ہے جو کافی خراب ہو چکی تھی، یہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو ریسٹور کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر بہت خوبصورت میرلنس بنے ہوئے ہیں، جہاں پر یہ فوجی جاتے تھے، وہ اس میں رک کے تو ادھر سے وہ ڈیفینس کے طور پر یوز کیا جاتا تھا۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ ہمیں میٹیریل وہی یوز کرنا تھا جو پہلے یوز ہوا ہے، اور میٹیریل کے علاوہ بائنڈنگ میٹیریل بھی سیم وہی اسی پیٹرن پہ اسی تناسب سے بنانا ہے، اور وہی ہم یوز کرتے ہیں جو آرکیالوجیکل اور پرانی سائٹ پہ کیا جا سکتا ہے۔ سیمنٹ وغیرہ یا کوئی نئی چیز ہم اس میں ایڈ وغیرہ نہیں کرتے۔ ڈوم جو ہے نا وہ کافی کریکس آگے تھے، تو ہم نے سب سے پہلے پرائرٹی اس کو دی ہے، اس کو پروٹیکٹ کیا ہے تاکہ پانی جو ہے پینیٹریٹ نہ کرے، بارش پانی اندر نہ آئے، کیونکہ اس سے کافی ڈیگریڈیشن ہو چکی تھی۔ تو سب سے پہلے ہم نے ڈوم کو ٹھیک کیا ہے، اوپر سے یہ پروٹیکٹ ہو گیا ہے۔ سائڈ بائی سائڈ ہم نے نیچے اس کا پلیٹ فارم جو تھا وہ ایکٹاگونل ہے، وہ ہم نے پلیٹ فارم فل کمپلیٹ کر کے سیٹ کر کے اس کو ٹھیک کر دیا۔ سٹون کے اوپر یہ خاص بات ہے کہ ٹیکسلا سٹون ہر شکل میں ڈھل جاتا ہے اور پھر لانگ لائف ہوتے ہیں، ہزاروں سال۔ اب کتنے بھی کھنڈرات میں ہم نے ٹیکسلا سٹون اور بلیک شیس کے اوپر کام دیکھا ہے کہ وہ ہزاروں سال زیر زمین رہے ہیں وہ نوادرات، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ نکلے ہیں۔
पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री 1976 में ये इस्टेब्लिश हुआ और इसके बेसिक मैंडेट है वो इसके 3 है, एक रिसर्च है, एक कंजर्वेशन है और एक इनफॉर्मल एजुकेशन है। यानी हमारे साइंटिस्ट फील्ड में जाते हैं, रिसर्च करते हैं, वहाँ से वो स्पेसिमेंट्स लाते हैं और यहाँ उसका कुछ पार्ट हम इस डिस्प्ले गैलरीज में डिस्प्ले करते हैं ताकि इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू जनरल आवाम तक उसकी इंफॉर्मेशन दी जाए कि कौन सी स्पीशीज़ को जो है ना वो बचाना है और कौन सी एक्सटेंट हो रही है। और सबसे अहम बात ये कि ये पाकिस्तान का वाहिद नेचर हिस्ट्री म्यूज़ियम है, जबकि बाकी कंट्रीज़ में एक ही शहर में कितने ही म्यूज़ियम्स होते हैं, तो लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ ये वाहिद म्यूज़ियम है जो ये कैपिटल बेस्ड है, इस्लामाबाद में है। हमारे पास टोटल कलेक्शन जो है ना वो 14 लाख है और उसमें से जस्ट 10% जो है ना हमने डिस्प्ले के लिए रखी हुई है और बाकी हमारे पास जो है ना वो जो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ है, रिपोजिटरीज़ है, वहाँ स्टोर है। यहाँ जितनी भी स्पीसीज़ हैं, जितने भी स्पेसिमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, ये सारे ओरिजिनल है, एक्सेप्ट फ्यू, हो सकता है चंद एक जो कि हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, जो कि इस इन्वायरमेंट में गल जाती है, अदरवाइज सारी जो भी है वो ओरिजिनल है। हमारे पास 2 स्पेसिमेन ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। एक तो बलूची थीरम है जो कि बलूचिस्तान से मिला और वो 30 मिलियन ईयर्स पुराना है। ये ऐसा स्पेसिमेन है जो दुनिया में कहीं नहीं है और ये पूरे वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा जो है ना मैमल था जो कि अभी एक्सटेंड हो चुका है। वेल शार्क जिसकी लंबाई 41 फीट है और 16 टन उसका वज़न है और ये भी ऐसा स्पेसिमेन है जो दुनिया में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। और ये कराची में कुछ साल पहले मुर्दा हालत में पाई गई थी और वहाँ से बड़ी मुश्किल से कंटेनर के थ्रू हम उसको यहाँ लाए और उसकी प्रोसेसिंग जिसको हम टैक्सीडर्मी कहते हैं या स्टफिंग कहते हैं, उसमें तकरीबन साल लगा। मुख्तलिफ प्रोसेस में चूँकि बहुत बड़ी खाल थी उसको हमने प्रोसेस किया। उसके बाद ऊपर वाले हाल की सारी जो साइड वाले विंडोज़ हैं, खिड़कियाँ हैं, उसको हमने रिमूव किया और क्रेन्स के थ्रू जो है ऊपर उसको शिफ्ट किया। और ये इंटरेस्टिंगली इतना बड़ा स्पेसिमेन जो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है वो इधर ओरिजिनल शेप में जो है ना वो महफूज है। जो क्रोकोडाइल है जिसको घड़ियाल कहते हैं या ग्रीन टर्टल है या जितने भी एनिमल्स है वो ओरिजिनल शेप में है और उसको जो है ना वो टैक्सीडर्मी यानी एनिमल्स को आप ले आते हैं, उसका जो अंदर से गोश्त है वो आप रिमूव करते हैं, उसकी खाल में कोई और मटेरियल उसको आप भरते हैं, क्योंकि जो फ्लैश है जो गोश्त है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो गल जाता है और फिर फॉर एवर वो महफूज रहता है। ब्लू व्हेल बलूचिस्तान से हमें स्पेसिमेन मिला था 1967 में और वो जो लेंथ है वो तकरीबन 80 फीट है और वो भी ऐसा है कि वहाँ से हम जो है ना उसके ओरिजिनल बोन्स वगैरह वो लाए और यहाँ साइंटिस्ट ने उसको जो है ना वो रिकम्बाइन किया, फिर जोड़ा है और वो भी ओरिजिनल शेप में यहाँ मौजूद है। हमारे पास वुड का तना पड़ा है और उस फील्ड को ये लेटेस्ट फील्ड है, रिसेंट जो है वो है जिसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, यानी वो एक तना आपको जो है 5000 साल पुरानी हिस्ट्री तक इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जब आप उस तने को देखेंगे उसमें आपको रिंग्स मिलेंगी, उन रिंग्स को जो दायरे हैं उसको देख के आप पूरी हिस्ट्री जो है पास्ट की
कम से कम 5000 साल तक वो आप जान सकते हैं कि कब जो है ना वो ड्राउट था, मतलब यानी खुश्कसाली थी, कब जो है ना बारिशें हुई, कब पानी ज़्यादा था, कब पानी कम था, और क्या इन्वायरमेंट रहे, क्या टेम्परेचर रहा, तो वो सारी उसमें, तो ये एक नई फील्ड है, वो भी हमने नीचे डिस्प्ले किया। जितने भी सिविलाइज, जितने भी एडवांस कंट्रीज़ हैं, उन्होंने आज से काफ़ी साल पहले साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ ही फोकस किया, उस पर इन्वेस्ट किया, और उसकी वजह से आज वो जो है ना वो डेवलप कर गए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे अवाम जो है ना वो साइंस और नेचुरल वेल्थ ऑफ पाकिस्तान उसके बारे में जाने, और कौन सी चीज़ अहम है, उसको कैसे बचाना है, और उसके लॉस होने से हमारी सोसाइटी, हमारे फ्यूचर पे क्या नेगेटिव जो है ना वो मनफी असरात पड़ेंगे, तो उसके बारे में जाने हमारी नई जनरेशन, हमारे स्टूडेंट्स, ताकि वो उन स्पीशीज़ को फर्दर तबाह होने से बचाएं और नेचर को जो है ना उसके असल शेप में रहने दें।